Assalamualaikum girls. We have done exercise 1.1. We are doing quadratic equations. We have discussed about how to solve quadratic equation और हमने उसको देख लिया था. We have done by factorization and by completing square in our last topic. Now in this topic we have to discuss about, in this exercise we have to discuss how to solve quadratic equation by using quadratic formula. Okay, so that is very easy formula जो हमने already class में भी discuss किया था. So the quadratic formula is x is equals to minus b plus minus under radical b square minus 4ac over 2a. If we have to compare with the general form of a quadratic equation, that is ax square plus b of x plus c is equals to 0. So यहाँ जो भी आपके पास क्वेश्चन आते जाएंगे वो आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते जाओ. As you know the roots of a quadratic equation, आपके पास दो सोल्यूशन सेट जो आता है quadratic equation में, जब भी आप सॉल्व करते हो आपके पास दो आंसर्स आते हैं. They are called the roots of a quadratic equation. अब the thing is this कि आप ये सोचोगे कि दो आंसर कैसे जनरेट होंगे. अब ये फॉर्मूला है. So here there is a sign of plus and minus. ठीक है. So we have to simplify. जब हम करेंगे तो once we have to simplify with plus and then we have to simplify. सेकेंड में हम नेगेटिव से सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास दो रूट्स जनरेट हो जाएंगे फ्रॉम आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा जी, नाउ वी हैव मूव ऑन एक्सरसाइज. सो फॉर्मूला इधर ही रहने देते हैं. Quadratic formula is x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Done. So we have first question of only first question का first part है. We have to solve the following given equations, quadratic equations जो भी दी हुई हैं वो हमें solve करनी है with the help of quadratic formula. Now we have equation is 2 minus x square that is equals to 7x. पहली बात तो ये कि जो आपकी equation इसको आप सेट डाउन करेंगे. Even power term is never be negative, means कि square term जो है वो negative नहीं होती. तो हमारे पास solve करते हैं, इसको rearrange करते हैं. So हमारे पास आ जाएगा x square plus 7x minus 2 is equals to 0. अब हम कंपेयर करते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है. वी नीड b, वी नीड a, वी नीड c. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कंपेयर करते हैं. एज लिखेंगे आप लोग a इस इक्वेशन में क्या है 1, b इस इक्वेशन में क्या है 7 और c इस इक्वेशन में क्या है -2. Now we have to put it in the formula. हम लिखेंगे by using quadratic formula, that is x is equals to, हम ये put कर देते हैं values इसमें, minus b, b is 7 plus minus under radical 7 का square minus 4, a is 1, c is -2 over 2a, a is 1, that is equals to -7 plus minus 7 7 सा आपके पास आ गया 49, then we have 4 2 सा 8 and minus minus plus 8. ओके, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1. So what we have now 49 plus 8, that is 57,
-7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 57/2। अच्छा जनाब, अगर तो 57 के स्क्वायर रूट आ जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब नहीं है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एज इट इज लिख लेते हैं। इसका मतलब यही होता है, एक पॉजिटिव के साथ सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर और एक नेगेटिव के बाद सिंप्लीफाई होने का आंसर। सो x इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन सेट में आप लिख लें -7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 57/2। So this is our first question. Solve it. Done. Now third part of a question. So we have third part is under radical 3 x square, ये सिर्फ अंडर रेडिकल 3 के ऊपर है, ठीक है, प्लस x इज इक्वल्स टू 4 अंडर रेडिकल 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले अरेंज कर लेंगे। अंडर रेडिकल 3x स्क्वायर plus x minus 4 under radical 3 is equals to 0. Now compare with the journal form. So a is equals to under radical 3, b is equals to minus 4 under b is equals to 1 and c is equals to minus 4 under radical 3 by using formula. So x is equals to, जो वेरिएबल में मूव होगा ना वो ही हम यहाँ लिखेंगे। अगर y आ जाएगा तो आप y लिखोगे, जो भी वेरिएबल फाइंड आउट आपने करना होगा। So x is equals to minus b1 plus minus under radical 1 का स्क्वायर minus 4, a is under radical 3 and c is 4 under radical 3, ठीक है। c भी आपके पास 4 अंडर रेडिकल 3 आ गया, ये बाहर आपके पास फॉर्मूला तो 4 आ गया, बी केयरफुल, इधर गड़बड़ ना कर दीजिएगा। और here we have 2a. now -1 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 1 तो 20 था, 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 4 is 16 एंड अंडर रेडिकल 3 into 3। अच्छा ये भी माइनस का था, बी केयरफुल रिगार्डिंग साइन आंसर, माइनस माइनस तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 into 3 दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे और फिर वो पेयरिंग होके बाहर आ जाएंगे। नाउ वी हैव -1 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 1 प्लस 16 into 3 एंड वी हैव 2a, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, सो x is equals to -1 plus minus 16 into 3 is a 48 over 2a, a की जगह हमने 14 नहीं किया, ओहो, अंडर रेडिकल 3 under radical 3 under radical 3, ठीक है। so 2 under radical 3, तो ये हमारे पास बनेगा x is equals to 1 plus minus under radical 49 over 2 under radical 3। फिर हमारे पास आ जाएगा x is equals to 1 minus 1 प्लस माइनस 49 का क्या हो जाता है 7 over 2 under radical 3 और आई थिंक सो आई हैव टू रब दिस
तो ये मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। तो x इज -1 + 7 2 अंडर रेडिकल 3 इधर -1 - 7 over 2 under radical 3. So here you have 6 over 2 under radical 3 और इधर आपके पास -8 over 2 under radical 3. So 2 1s are 2, 2 3s are 6, and here we have 2 and 2 4s are 8. So the solution set x is equals to 3 over under radical 3 और जो दूसरा आ रहा है -4 over under radical 3. So this is your answer. ठीक है, नोट डाउन. Okay, now next is hopefully आप लोगों ने लिख लिया होगा. अगला करते हैं. Fifth part is we have 6x². मेरे ख्याल से आप लोग इस पार्ट को आराम से कर सकते हैं. I think so I have to solve 7th part for you. Part 7 for you. ठीक है? So you have 3 over x - 6. पहले हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म इसका बनानी पड़ेगी. -4 over x - 5 that is equals to 1. ठीक है जी, पहले एलसीएम ले लें फटाफट. x - 6 x - 5. सो यहाँ आ जाएगा 3, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म इज x - 5 देन 4. ये एलसीएम और डिनोमिनेटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला रिमेनिंग टर्म आ जाएगी 4 into x - 6 और ये पूरी की पूरी टर्म उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो वी हैव 3x and 15 minus 4x and 4 6 are 24 and that is 1 और नीचे आपके पास आ जाएगा x into x is x² minus 5x minus 6x minus minus plus 6 5s are 30. अब हम इसको इधर ले आएंगे. मैं सिंप्लीफाई करके दे रही हूँ. देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आप कंपेयर करेंगे और आपने आगे खुद सॉल्व करना है. मैं सिर्फ आपको फॉर्म डेवलप करके दे रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म. ठीक है. सो इधर आपके पास दैट इज -x हो गया और आपके पास यहाँ पर जो आ जाता है दैट इज 24 माइनस क्या है जी 15 दैट इज इक्वल्स टू आपका 9 आ जाता है और प्लस का 9 आ गया. इधर आपके पास आ जाएगा x². 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल विल बी सेम और माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस दैट इज 11x + 30. अब इन सबको स्क्रूटनाइज करेंगे, रीअरेंज करेंगे. x² - 11x प्लस x जो जब इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा प्लस 30 minus 9 is equals to 0 and then आपके पास क्या आ जाएगा x² minus 10x and plus 21 is equals to 0. Now by using quadratic formula you have to further solve it. ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को further solve कर लेना है. Okay now girls, या मैं कर देती हूँ फिर आप लोग कहेंगे कि समझ नहीं आया. होप आप लोगों ने यहाँ तक लिखी है. जल्दी से लिखें, जल्दी 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 जल्दी. So now compare करेंगे इसे
1, B is equals to -10 and C is equals to 21. ठीक है, by using quadratic formula, x is equals to -p plus minus under radical b square minus 4ac over 2a. तो b is -10 plus minus under radical -10 का square minus 4a is 1 and c is 21, 2 into 1. ठीक है, ये रब कर रही हूँ. So you have x is equals to 10 plus minus under radical 10 का square is headweight होता है फिलहाल अभी तक, minus 84, 21 into 4 is 84 over 2 and 100 minus 84 is 16. X is equals to 10 plus minus under radical 16 over 2. तो x is equals to 10 plus minus 4 over 2. तब आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा? x is equals to 10 plus 4 over 2, 10 minus 4 over 2, that is 14 by 2, that is 6 by 2, that is 7, that is 3. So the solution set is 7 and 3. Hopefully यही होगा आंसर.